Tell me what are the channels of what are the different level of channels? How many channels of level? बताइए, levels of channels. Sorry. ये उसी के पहले बहुत पहले के क्लास का है. चैनल पावर्स है, लेकिन उससे भी पहले जो क्लासेस नहीं. चैनल आपके लेवल ऑफ चैनल्स कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell me online and offline class? Online and offline class. Who is going to tell me what are the levels of channel? Raise your hand. Online class. And everyone turn on your camera. Every student. I am not going to repeat. Class में किसको पता है? Offline class. Levels of channel. चलिए विश्वजीत, stand up. बताइए. Levels of channel. What is channel distribution? Supply chain. बैठो. What about the online class? किसी को पता है आंसर इसका? Labels of channel. चलिए. Yes, ma'am. Yes, वैष्णवी बताइए. Turn on your camera. बताओ. Unmute yourself. Unmute yourself. Yes, ma'am. First is 0 level channel, second 1 level channel, and third is 2 level channel, and then after it comes 3 level channel. In 0 level channel, there is no intermediary. It is between the manufacturer and direct to consumer. And in 1 level channel, there is only one intermediary that can be manufacturer, wholesaler, and then consumer, and also that can be retailer in between. In 2 level channel, 1 level channel, basically in 1 level channel, there is only retailer in between the manufacturer and the consumer. सिर्फ और सिर्फ रिटेलर ही होगा जो 1 लेवल चैनल में. होलसेलर कभी भी कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल नहीं करता है, तो आपके 1 लेवल चैनल में कभी भी होलसेलर नहीं होगा. क्या होगा? रिटेलर होगा, हमेशा याद रखिएगा. चलिए 2 लेवल चैनल. Yes, ma'am. In 2 level channel, there is 2 intermediary, that is from manufacturer to wholesaler, and then retailer, and then finally to consumer. Okay. And in 3 level channel, there are 3 intermediary. First is manufacturer, then wholesaler, then retailer, and then we can say jobber or agents in between, and then retailer, and then consumer. 3 लेवल में 3 इंटरमीडियरीज होगा. ये 3 इंटरमीडियरीज कौन कौन हो सकते हैं? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को हम इंटरमीडियरीज नहीं मानते. इन दोनों के बीच में जो भी आपके हैं मेंबर्स, उनको हम इंटरमीडियरीज मानते हैं. तो आपके मैन्युफैक्चरर के बाद या तो एजेंट हो सकता है होलसेलर तक के लिए, ठीक है, और या तो होलसेलर और रिटेलर के बीच में कोई जॉबर हो सकता है, यानी कोई एजेंट हो सकता है. आई बात समझ में? So that agent or the broker mediator can be in between the manufacturer and wholesaler, or can be in between the wholesaler and retailer. आई बात समझ में सबको? Everyone, this point is clear? Okay, who is going to tell me about the channel power? What is the meaning of channel power? Online and offline class, raise your hand. Online and offline class, raise your hand, and everyone turn on your camera. Every student. Who is going to tell me about it? What is the meaning of channel power? Online class and offline class, raise your hand. What is the meaning of channel power? Yes, Ruchi. मैम इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो डोमिनेंट पावर जो देते हैं उससे मतलब जो बाकी मीडिएटर है उसको इफेक्ट कर सकता है. मैम इसी को कहते हैं चैनल पावर. एक बार फिर से रिपीट करना जरा ये पॉइंट. मैम मैन्युफैक्चर जो होते हैं जो डोमिनेंट पावर देते हैं उससे मतलब डोमिनेंट पावर देते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? डोमिनेंट पावर देते नहीं है, दे आर इन द डोमिनेंट पोजीशन. यस मैम. डोमिनेशन का मतलब होता है जो पर्सन आपको अपने डिसीजन से इफेक्ट करे, डोमिनेट करे, यानी कि आप पर रूल करे. इन शॉर्ट ये होता है इसका मतलब. और डोमिनेशन पावर देना, दिस इज नॉट अ करेक्ट लाइन व्हाट एवर यू आर यूजिंग दैट.
इसको यूज मत कीजिए। The manufacturer are in the dominant position if they are a strong or reputed company. चैनल पावर होता है, इट इज अ पावर विच, किसके पास ये पावर है? आपके मैन्युफैक्चरर के पास भी हो सकता है, आपके इंटरमीडिएरीज में रिटेलर के पास भी ये पावर हो सकता है, और होलसेलर के पास ये पावर हो सकता है। लेकिन आपके बुक में जो पावर जो दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ पावर जो है, वो मैन्युफैक्चरर के कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है। जब आपके मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे होते हैं, यानी कि वो बहुत रिनाउंड, एक एक्सपैंडेड, रेप्यूटेटेड ओल्ड कंपनी अगर होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो बाकी के मेंबर्स हैं, यानी कि अगर फिलिप्स प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको ऑब्वियसली फिलिप्स कंपनी खुद से तो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहा है, दे वांट अ इंटरमीडिएरीज फॉर दैट, डीलर चाहिए उनको, है ना। तो कहीं ना कहीं दे हैव पावर कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और उस डिसीजन का इफेक्ट एग्जिस्टिंग मेंबर्स पे क्या होगा, पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को एक पॉइंट बताया था, यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ पावर था, कोर्सिव पावर, ये पावर ऐसा पावर है जहां पर आप कोई भी निगेटिव एक्शन, यानी कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन आप ले सकते हैं, दिस इज अ निगेटिव स्टेप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एक पावरफुल पोजीशन पर हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जो बाकी मेंबर्स हैं वो आपके गोल की तरह, गोल को अचीव करने में आपकी प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी उनका डायरेक्शन इट इज नॉट सूटेबल, इफ दे आर नॉट, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, मान नहीं रहे आपके जो इंटरमीडिएरीज हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो मैन्युफैक्चरर है वो निगेटिव एक्शन ले सकता है। कैसा एक्शन लेगा वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। आ रही बात समझ में? टर्मिनेट कर देगा। सो ये निगेटिव स्टेप हुआ। क्या हुआ? निगेटिव स्टेप, जहां पर आपने उस पर्सन को इंप्रूव करने का मौका नहीं दिया, आपने सीधे एक्शन ले लिया, और उस एक्शन का इफेक्ट ये होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपकी इंटरमीडिएरीज के साथ वो खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आया? दिस इज कोर्सिव पावर। अब कुछ होता है रिवॉर्ड पावर, ये पॉजिटिव स्टेप होता है। जब आप देखते हैं कि आपके जो इंटरमीडिएरीज हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप निगेटिव स्टेप लेने की जगह पर आप क्या कीजिएगा, आप पॉजिटिव स्टेप लीजिएगा। जैसे आप उनको कुछ ज्यादा डिस्काउंट दीजिएगा, मार्जिन दीजिएगा, ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो आपके प्रोडक्ट को स्मूथली सेल कर पाए अपने कस्टमर्स को या आगे रिटेलर्स को, अगर वो होलसेलर है। आ रही बात समझ में? और उनको इंप्रूव करने का आप मौका देंगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म करेंगे फर्स्ट पावर की तरफ। तो ये पावर होता है रिवॉर्ड पावर, और इसका रिजल्ट जो होता है ना, ये कंपैरेटिवली टू कोर्सिव पावर से बेटर होता है। क्लियर हो गई बात? वो एक निगेटिव स्टेप है और ये एक पॉजिटिव स्टेप है। ठीक है, समझ में आया? और ये जो पावर्स, चैनल पावर का मतलब समझ में आया? कोर्सिव, रिवॉर्ड, लेजिटिमेट पावर है, जहां पर आपको मैन्युफैक्चरर या फिर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वो आपको मैन्युफैक्चरर कहेगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है आप उस हिसाब से वर्क को करोगे। अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा या उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, यानी उसमें लिखे हुए टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सो दिस इज नोन एज लेजिटिमेट पावर। समझ में आ रही बात? दीज आर द पावर्स, ये मैंने क्लास में करवाया है। ओके, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द चैनल कॉन्फ्लिक्ट? अभी इसमें और भी पावर्स है, वो आप लोग देखिएगा, नोटबुक मिल गया ना सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज चैनल कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या होता है? व्हाट इज चैनल कॉन्फ्लिक्ट? व्हाट इज चैनल कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स? ये लास्ट क्लास में मैंने कराया है, कौन बताएगा मुझे? चलिए वैष्णवी बताइए जरा क्लास में। विश्वजीत बाहर जाओगे? चलिए बताइए वैष्णवी। Ma'am, channel conflict is disputes among marketing channel members is said to be channel conflict, and its types are horizontal channel conflict, vertical channel conflict, inter-type channel conflict, and multi-level channel conflict. First is horizontal channel. ओके। चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, जैसे आप लोग 4 फ्रेंड्स अगर साथ में, तो किसी ना किसी के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, बहस हो सकती है, किसी बात पे आप लोगों का अगर सोच नहीं मिल रहा है, थिंकिंग नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है डिस्प्यूट हो जाए। होता है ये चीज। सो द सेम थिंग इज हैपन बिटवीन द चैनल्स, लाइक मैन्युफैक्चरर होलसेलर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, होलसेलर और रिटेलर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, यानी
चैनल मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट तब अराइज होगा जब जो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है उस पे सब कोई उसके लिए कंसेंट ना दे, यानी सबकी रजामंदी ना हो, है ना। जैसे होलसेलर के साथ आप डील कर रहे हो, होलसेलर कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो, दोनों का गोल मैच नहीं कर रहा, जो मैंने पहले भी पॉइंट में बताया है, डायरेक्शन अलग अलग जा रहा है, मैन्युफैक्चरर को लग रहा है कि लॉस हो सकता है और लॉस हो भी रहा है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन द चैनल मेंबर्स। यस वैष्णवी, यू कैन कंटिन्यू नाउ। Yes, ma'am. In horizontal channel conflict, the conflict arises in the same level of channel. Just like मतलब एक होलसेलर का दूसरे होलसेलर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दोनों होलसेलर के बीच, तो वैसे को हम लोग हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। एंड नेक्स्ट इज वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट लेवल ऑफ चैनल के बीच होता है, जैसे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच या फिर होलसेलर या रिटेलर के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए तो। नेक्स्ट है मैम इंटर टाइप चैनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटर टाइप चैनल कॉन्फ्लिक्ट जब हम जब कोई चैनल मेंबर किसी अदर चैनल मेंबर के प्रोडक्ट लाइन में एंटर कर जाए, जैसे एग्जांपल फॉर डिपार्टमेंट स्टोर एंड कन्वीनियंस स्टोर के बीच अगर चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो। एंड नेक्स्ट इज मल्टी लेवल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर अदर चैनल में सभी चैनल मेंबर्स एक ही टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो अगर उन लोग के बीच कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर्स के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो मल्टीपल लेवल चैनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। एग्जैक्टली। वर्टिकल जो चैनल होता है कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होगा कि आपका मैन्युफैक्चरर का होलसेलर के साथ, होलसेलर का रिटेलर के साथ, इस तरीके से आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो सकता है। रिटेलर का एजेंट के साथ, किसी का भी, मतलब जो इन बिटवीन है उसके बीच में जब कोई भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, तो यहाँ लेवल देखिए अलग है, मैन्युफैक्चरर का अलग काम है, होलसेलर का अपना अलग है, रिटेलर का अपना अलग है, तो इसको कहेंगे वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। जब इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा कि जो आपका एक ही लेवल पर जो आपके मेंबर है चैनल के, जैसे मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरर है वो एक होलसेलर के साथ तो डील करता नहीं है, उसके पास कम से कम 50 होलसेलर है मान लीजिए। अब वो दो होलसेलर के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। आई बात समझ में? जैसे रिटेलर है, एक रिटेलर को तो होलसेलर प्रोडक्ट सेल नहीं करता, मल्टीपल रिटेलर दे हैव, तो मान लीजिए दो रिटेलर के बीच में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मान लीजिए कि एक एरिया, मतलब इट्स टू एरिया है, दो एरिया है, एक पटना में मान लो दो एरिया, बोरिंग रोड ले लो और एक ले लो आपका पुनाईचक, ठीक है, दो ये है ना, पुनाईचक है ना पटना में, तो पुनाईचक में जो एक पर्टिकुलर होलसेलर का, मतलब होलसेलर जो है उस रिटेलर से भी डील कर रहा है, होलसेलर जो है वो बोरिंग रोड में भी जो रिटेलर उसको भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, दोनों को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। अब दोनों सेम कंपनी के प्रोडक्ट रख रहे हैं। अब जो पुनाईचक वाला जो आपका रिटेलर है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को इधर के एरिया में भी कोशिश कर रहा है सेल करने का, मतलब यहाँ के कस्टमर को भी ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ के, बोरिंग रोड के। तो इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, क्योंकि जो आपका एक एथिक्स होता है बिजनेस में उसको वो फॉलो ना करके वो क्या कर रहा है कि फॉर द प्रॉफिट अर्निंग ही इज बेसिकली ट्राई टू ग्रैब और इंक्रीज द मार्केट शेयर in that area where already that kind of store is established, जो already store situated है, located है, वहां पर जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश में लगा है। तो ये कहीं ना कहीं वहां के, मतलब बोरिंग रोड में मान लीजिए जो आपके रिटेलर है उनके और उनके बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसमें भी और भी दो टाइप है, दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी का लास्ट क्लास में वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, देख लेना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, टाइप्स ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट लिख लिया ना, वर्टिकल लेवल कॉन्फ्लिक्ट, मल्टी लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल और इंटर टाइप चैनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटर टाइप चैनल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखिए कॉजेज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट। ये वाला जो टॉपिक था ये करवा रही थी मैं लास्ट क्लास में, कि क्या रीजन है चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट। लड़ाई क्यों हो सकती है, कुछ ना कुछ रीजन होगा, कुछ ना कुछ कॉज होगा कि ये इस वजह से आपके बीच में डिस्प्यूट हुआ मेंबर्स के बीच में, तो उसके सारे रीजंस हैं, इसको लिखते चलो। पहला है रोल एम्बिगिटी। रोल एम्बिगिटी, रोल एम्बिगिटी।
AMBIGUITY, एम्बिगिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा अनसर्टेन एक्ट है जो इंटरमीडियरी जो है उसको, इंटरमीडियरी के बीच में इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि जो चैनल में आपके मेंबर्स हैं दे डोंट नो हाउ टू वर्क। जब उनको पता नहीं कि उनको कैसे अपने वर्क को, परफॉर्मेंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है, उनको अपना रोल नहीं पता है। जैसे एक ड्रामा में सबको अपना रोल पता होता है ना, कोई राम का, कोई सीता का, कोई किस तरीके से रोल कर रहा होता है, सबका एक कैरेक्टर होता है उसमें डिफाइन। तो यहाँ पर जब आपके मेंबर्स को अपना रोल ही नहीं पता है तो हाउ दे आर एबल टू परफॉर्म वेल। सो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि दैट पर्सन आर कंफ्यूज in the responsibility, in the work performance, in the work और responsibility के बीच में उसको समझ नहीं आ रहा काम करना कैसे है। ठीक है, तो अनसर्टेन एक्ट किसी भी इंटरमीडियरी का किसी भी तरीके का रॉन्ग, ये बोल सकते हैं ना रॉन्ग या फिर गलत परफॉर्मेंस, या फिर बोल सकते हैं कि कोई गलत डिसीजन बाकी मेंबर्स पे इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ द एम्बिगिटी, रोल एम्बिगिटी, दिस इज हैपन। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड इज इनकम्पैटिबल गोल्स। अच्छा देखो मैं बताती हूँ, आप दो फ्रेंड्स हो, एक कहता है डोसा खाएंगे, एक कहता है कि नहीं चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो इस बात पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि नहीं पहले ये फर्स्ट भी ये। तो ये तो एक हो गया रोल एम्बिगिटी वाला सिचुएशन, डायरेक्शन लेस वाला सिचुएशन। इनकम्पैटिबल गोल का मतलब है कि आपका मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि आपको 10 लाख यूनिट बेचना है 1 महीने में, और दूसरा पर्सन कह रहा है कि भाई मैं 1 लाख से ज्यादा नहीं बेच पाऊंगा। होलसेलर बोल रहा है कि आई कैन नॉट एबल टू सेल मोर देन 1 लाख यूनिट। सो इन दैट सिचुएशन द गोल जो दोनों का है ना वो बिल्कुल क्या है, एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो इसको कहते हैं ये आपका इनकम्पैटिबल गोल्स। लिख लिया ना, इनकम्पैटिबल गोल्स। जब मैन्युफैक्चरर और उसके इंटरमीडियरीज का सेम ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सेम गोल नहीं होता है, दोनों का वर्क डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, दोनों की नीड डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो रिजल्ट होता है वो चैनल कॉन्फ्लिक्ट का होता है, यानी कि फाइनली उनके बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। रोल एम्बिगिटी, कि पर्सन को अपना रोल, अपना वर्क ही नहीं पता है कि मुझे कैसे परफॉर्म करना है। ये इनकम्पैटिबल गोल्स, जब मैन्युफैक्चरर और उसके इंटरमीडियरीज का जो गोल है वो एक दूसरे से एकदम क्या करे, वैरी करे, अलग अलग हो, और दोनों के नीड अलग अलग हो। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका क्या हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इमेजिन करो कि कोई एक नई कंपनी मार्केट में आई, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई मार्केट में आई, अब उसे अपने प्रोडक्ट को क्या करना, सेल करना है कंज्यूमर तक। तो उसने क्या किया भाई, होलसेलर और रिटेलर्स की हेल्प किया। ठीक है, अब होलसेलर जो है उसके प्रोडक्ट को रखने से कतरा रहा है, कह रहा है नहीं मैं आपके प्रोडक्ट को नहीं रखूंगा, क्योंकि होलसेलर और रिटेलर भी देखते हैं कि किस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है और उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं मैन्युफैक्चरर से। सही बात है। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर चाह रहा है कि आप उनके प्रोडक्ट को सेल करो ताकि उसको प्रॉफिट हो, और जो होलसेलर है वो रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, या फिर वो यूनिट्स जो है, जितना आप यूनिट्स चाह रहे हो कि सेल हो जाए उतना के लिए आपके होलसेलर्स ही रेडी नहीं है वो रिस्क लेने के लिए। तो ऐसे केस में इट माइट बी पॉसिबल कि आपका क्या हो जाए, कंफ्लिक्ट हो जाए, बिकॉज जो आप दोनों का जो डायरेक्शन है, आप दोनों की जो सोच है वो मैच नहीं कर रही। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग और स्ट्रैटेजिक मिसअलाइनमेंट। मार्केटिंग और स्ट्रैटेजिक मिसअलाइनमेंट, मिस MIS है, मिसअलाइनमेंट, मिसअलाइनमेंट, ALIGNMENT, अलाइनमेंट, मिसअलाइनमेंट। कई बार क्या होता है कि जो आपके दो चैनल पार्टनर्स हैं प्रमोट द मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट इन डिफरेंट मैनर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 2 होलसेलर है, A और B। A जो है वो अलग तरीके से आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, B जो है वो अलग तरीके से प्रमोट कर रहा है। इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। कई बार 2 जो चैनल्स पार्टनर होते हैं प्रमोट करते हैं आपके मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को डिफरेंट मैनर में, which created 2 different images in front of the customers। यानी कि होलसेलर जो A है वो अलग से कर रहा है, ये आपकी इमेज से, आपके मैन्युफैक्चरिंग जो आपके प्रोडक्ट का इमेज बेटर कर रहा है, और ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अलग इसका रिव्यू दे रहा है आपके प्रोडक्ट का, ये अलग रिव्यू दे रहा है प्रोडक्ट का।
तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर कंफ्यूज होगा अगर ये आगे जाता है रिटेलर के पास। तो ये तो होलसेलर की बात हुई। अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट होलसेलर को दे रहा है तो होलसेलर बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है प्रोडक्ट को, जब वो रिटेलर को दे रहा है तो वो बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर पा रहा है प्रोडक्ट को, वो अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, या तो डिफरेंट लेवल चैनल पे या तो सेम लेवल चैनल पर भी आपके कॉन्फ्लिक्ट का अराइज होने का रीजन ये हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर क्या चाहेगा, प्रॉफिट चाहेगा, प्रोडक्ट की सेल चाहेगा, अपनी कंपनी का गुडविल इंक्रीज करना चाहेगा, रेपुटेशन बढ़ाना चाहेगा, यही ना चाहेगा। और वो क्या देख रहा है कि जो अलग अलग आपके यहाँ पर जो चैनल्स हैं, मेंबर्स हैं चैनल के, इसके लिए आपके प्रोडक्ट का अलग वैल्यू है, इसके लिए आपके प्रोडक्ट का अलग वैल्यू है, उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। और इसके लिए मैन्युफैक्चरर को क्या करना चाहिए कि इनको अच्छे से मार्जिन और डिस्काउंट देना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट और मार्जिन नहीं देगा ना, अगर होलसेलर को इसने मार्जिन दिया और होलसेलर रिटेलर को मार्जिन बहुत ज्यादा हाई नहीं देगा, तो रिटेलर जो है मे बी ही इज नॉट गोइंग टू प्रमोट द प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर एज वेल, राइट। सो यहाँ पर दोनों आपके प्रोडक्ट को प्रमोट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से इट माइट बी पॉसिबल कि कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाए और आपके प्रोडक्ट को परचेज ना करें, है ना। तो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है। नेक्स्ट लिखिए, डिफरेंस इन मार्केट परसेप्शन, डिफरेंस इन मार्केट परसेप्शन, डिफरेंस इन मार्केट परसेप्शन। अच्छा, अब मार्केट परसेप्शन क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना सेल हो सकता है, कस्टमर्स कितना ज्यादा इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर मानता है कि आपका पटना का मार्केट है, यहाँ पर इस टेरिटरी में, आपकी इस एरिया में प्रोडक्ट को सेल करना इजी है, दिस इज द थीम, दिस इज द एम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ये प्रोडक्ट यहाँ सेल हो जाएगा। लेकिन जो इंटरमीडियरीज है यानी होलसेलर्स, रिटेलर्स और जो एजेंट है, उनका ऐसा मानना नहीं है। उनका मानना है कि कुछ ऑप्शनल या कुछ लिमिटेड एरियाज में ये प्रोडक्ट सेल होगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर जो आपके मैन्युफैक्चरर का परसेप्शन है यानी सोच जो है उसका, दैट इज नॉट सिमिलर व्हाट द इंटरमीडियरीज परसेप्शन हैव, यानी जो इंटरमीडियरीज है उसका परसेप्शन बिल्कुल ही अलग है आपके मैन्युफैक्चरर के परसेप्शन से। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, विच इट कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है। और पर्टिकुलर मार्केट को ग्रैब करने के चक्कर में क्या होगा कि जैसे इंटरमीडियरीज है, मान लीजिए कि अगर कोई दूसरे स्टेट का मैन्युफैक्चरर पटना में कोई बिहार में कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, ठीक है, तो बिहार के होलसेलर्स को वो क्या चाहता है, सप्लाई करना प्रोडक्ट। तो जो होलसेलर्स हैं उनको ज्यादा आइडिया होगा, रिटेलर को उससे भी ज्यादा आइडिया होगा, क्योंकि रिटेलर्स आर द लास्ट इंटरमीडियरी और लास्ट चैनल हु इज बेसिकली डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स, राइट। ये बात तो सच है। तो उनको भी ज्यादा नॉलेज होगा, लोकल एरियाज का नॉलेज होगा, कस्टमर डिमांड का नॉलेज होगा, है ना। तो यहाँ पर जो इंटरमीडियरीज है उनका परसेप्शन अलग है और मैन्युफैक्चरर का परसेप्शन अलग है। वो मार्केट को पोटेंशियल मार्केट समझ रहा है, मार्केटर जो आपके मैन्युफैक्चरर है, और इंटरमीडियरीज को लग रहा है दिस इज नॉट अ पोटेंशियल मार्केट। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वन इज चेंज रेसिस्टेंट, चेंज रेसिस्टेंट, चेंज रेसिस्टेंट। अच्छा, तुम लोगों ने जो वॉच खरीदा होगा तो उसके पीछे लिखा होगा वाटर रेसिस्टेंट, लिखा रहता है ना। इसका मतलब क्या है कि वाटर प्रूफ है, यही हुआ इसका मतलब। यहाँ पर चेंज रेसिस्टेंट का मतलब यही है कि जब आप किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होना चाहते हो, यानी जो होलसेलर है वो जिस तरीके से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, जिस तरीके से प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, रिटेलर जिस तरीके से प्रोडक्ट सेल कर रहा है, दे डोंट वांट टू चेंज द वे और द बोल सकते हैं जो उनका वेज और या जो स्टेप्स वो लेते हैं, दे आर नॉट रेडी टू चेंज। अगर मैन्युफैक्चरर व्हेन चैनल लीडर्स प्लान, चैनल लीडर कौन होगा, जिसके पास चैनल का पावर होगा, या तो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, या तो वो रिटेलर, या तो वो होलसेलर, जो भी पावरफुल पोजीशन पर होंगे, ठीक है, तो वो चैनल लीडर हो जाएगा। तो अगर कोई चैनल लीडर है और वो मॉडिफाई करना चाहता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, और the intermediaries may or may not accept the proposal, हो सकता है कि एक्सेप्ट करे वो जो चेंजेस आप करना चाह रहे हो, मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो,
या तो फिर वो चेंज ना करे। तो इस सिचुएशन में भी नॉन कोऑपरेशन वाली सिचुएशन अराइज होगी। जैसे मान लीजिए ये चीज ना बहुत सारी जगह पे हुआ था कि 10 साल पहले की मैं एक बात बताती हूँ कि आपके कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नियम बन गए थे कि वॉट एवर रिकॉर्ड यू हैव टू मेक दैट शुड बी इन ओनली डेस्कटॉप, यानी जो डेटा होगा वो ऑनलाइन सब कुछ स्टोर आपको करना है, रखना है। लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों को आता ही नहीं था कंप्यूटर चलाना, बहुत सारे एम्प्लॉइज को हॉस्पिटल में। तो फिर उनको ट्रेनिंग दी गई, वो रेसिस्ट कर रहे थे कि वी डोंट वांट टू चेंज, वी आर हैप्पी विथ रिकॉर्डिंग इट ऑन द रजिस्टर्स एंड वी आर हैप्पी टू मेंटेन द डेटा लाइक दैट। बट द गवर्नमेंट वाज एनफोर्सिंग दैट थिंग बिकॉज आप सोचो कि जो नोटबुक होता है वो तो कहीं भी जा सकता है, इधर उधर हो सकता है, आगे चल के कितना हेक्टिक होगा अगर आपको किसी का डेटा निकालना है तो पूरा रजिस्टर देखना पड़ेगा, सही बात है या नहीं। लेकिन इफ वी आर एबल टू यूज द एक्सेल, अगर हम देखें तो उसमें नाम डालो, सर्च करो, आपको मिल जाएंगी वो चीजें, है ना। सो फॉर मेकिंग द थिंग्स और द एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा स्मूथ करने के लिए, प्रोसेस थोड़ा स्मूथली चले, दे बेसिकली इंट्रोड्यूस दैट कंप्यूटर और डेटा सिस्टम को एक प्रॉपरली उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन लोगों ने इसको रेसिस्ट किया, क्योंकि रेसिस्ट करने का रीजन था बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस, ऑलरेडी वो कंफर्टेबल जोन में है, कंफर्टेबल जोन से कोई बाहर निकलना नहीं चाहता है, सही बात है। सो द सेम सिचुएशन इज विद द इंटरमीडिएरीज एज वेल। इफ यू आर गोइंग टू चेंज इट, अगर कोई मैन्युफैक्चरर कुछ भी चेंजेस लाता है तो उसका एक्सेप्टेंस जो है वो होलसेलर और रिटेलर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, तो इस वजह से भी नॉन कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? ऑनलाइन क्लास Yes, ma'am. सबको समझ आ रहा है ये जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ? एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Next one is improper geographic or demographic distribution. Improper geographic or demographic distribution. Improper geographic or demographic distribution. If the sales territory has a narrow consumer base and the channel leader, मत लिखो इसको, समझो, and the channel leader allows many selling partners, they tend to lose the interest soon. अब देखो, जैसे मान लो कि एक छोटा सा मार्केट का एग्जांपल हम ले लेते हैं, बिहार में कोई छोटा सा जगह, हाजीपुर, ठीक है। अब जो हाजीपुर आपका जगह है ये बहुत छोटा सा मार्केट है और रिटेलर, अब ये मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट का जो सप्लाई है या कंसाइनमेंट जो है उन्होंने यहाँ के हर रिटेलर को दे दिया। एक तो मार्केट नैरो, छोटा एरिया, स्मॉल एरिया, और उसके बाद भी इतना ज्यादा इंटेंस कंपटीशन, तो जितने रिटेलर्स हैं उनको क्या एक हाई लेवल पे प्रॉफिट हो सकता है? प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि जब मल्टीपल ऑप्शन है तो कंज्यूमर्स तो मल्टीपल ऑप्शन के हिसाब से वो कहीं से भी जाके परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट। अब होलसेलर, आपने 20 होलसेलर को प्रोडक्ट दे दिया, वो 20 होलसेलर वो 500 रिटेलर को दे रहे हैं सब, तो ऑब्वियसली आपका क्या हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट तो मिनिमम हो गया, क्योंकि जो एक कंज्यूमर है अगर उसको प्रोडक्ट खरीदना होता है तो वो एक रिटेलर के पास जो जाके परचेज करता है, अब उसको हर जगह पे उसका ऑप्शन मिलता है, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स पर रिटेलर के हिसाब से क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन तब होता है जब आपका सेल्स टेरिटरी जहां पर आप प्रोडक्ट को सेल करते हो, जिस एरिया में प्रोडक्ट को सेल करते हो, अगर आपका सेल्स टेरिटरी बहुत ही नैरो है, बहुत छोटा है और कंज्यूमर बेस भी बहुत लिमिटेड है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर चैनल लीडर अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है और वो अलाउ कर देता है मल्टीपल लोगों को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में धीरे धीरे इंटरमीडिएरीज का इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट को सेल करने में कम होता जाएगा या खत्म हो जाएगा, सही बात है। जिससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा वो प्रोडक्ट को सेल करना, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ट्रू, सही बात है ना। So because of that reason, because of the improper geographic or demographic distribution, if the channel leader don't know that how to use the channel members, if they are making an intense competition among the retailers and there are multiple retailers who are selling the same product, and even in a same area in a very small sales territory,
तो ऐसे सिचुएशन में धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट को सेल करने में खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे केस में भी कॉन्फ्लिक्ट कैन बी अराइज बिटवीन द चैनल लीडर एंड द इंटरमीडिएट्स, है ना। फिर वो सेल करने से लोग, बहुत सारे रिटेलर्स क्या करेंगे, मना करेंगे। सही बात है। चलो, सो दीज आर द रीजंस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। आई गेस दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। समझ में आया? समझ में आया? चलिए बताओ मुझे, व्हाट आर द रीजन फॉर द चैनल कॉन्फ्लिक्ट? स्टैंड अप एंड टेल एवरीवन। जो भी समझ आया बेटा हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत। इट्स नॉट अबाउट दैट यू हैव टू यूज द वर्ड्स और पॉइंट्स यूज करना, ऐसा कुछ नहीं। जो आपको लगता है बताइए सब। बोलो, यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, बताओ। आई विल करेक्ट यू, अगर गलत रहोगे तो मैं करेक्ट करूंगी। बताओ, कोशिश कीजिए। बोलो, एक भी वर्ड बोलो, हिंदी में बोलो। मैंने हिंदी में भी समझाया है आप लोगों को लगभग बहुत सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि आप हिंदी में भी अपने से भी अरेंज कर सकते हो वर्ड्स को और बोल सकते हो। बताइए। बैठो। बॉयज कौन बताएगा? चलो अंकित बताओ बेटा। बता दो। एम्बिगिटी नहीं, एम्बिगिटी। AMBIGUITY, एम्बिगिटी। हाँ, इंटरमीडिएरीज का। हाँ, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद में होता है इनकम्पेटिबल कोड, जिसमें मैन्युफैक्चर का ऑब्जेक्टिव अलग होता है और होलसेलर या इंटरमीडिएट का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। वेरी गुड। मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट, जब दो होलसेलर सेम, मतलब दो होलसेलर सेम प्रोडक्ट किसी एक मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है और वो डिफरेंट तरीका से प्रमोट कर रहा है। वेरी गुड। उसमें मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी अलग होता है। मतलब स्ट्रैटेजी जो है दोनों का अलग अलग है, कंफ्यूजन है वहां पे। हाँ हाँ। डिफरेंस इन मार्केट परसेप्शन, उसमें हमारे मैन्युफैक्चर का परसेप्शन अलग होता है और वो कुछ और चीजों को सच मानता है, उसकी जो थिंकिंग होती है। जैसे उसका टारगेट ज्यादा रह रहा है और उतना सेल नहीं हो पा रहा है तो उसका टारगेट अलग रहेगा। नहीं, ये परफेक्टली नहीं होगा इसका आंसर। परसेप्शन का मतलब जो आपकी थिंकिंग है, जैसे आप जो है ना, आप मानते हैं कि पटना का मार्केट पोटेंशियल मार्केट है, लेकिन इंटरमीडिएट कह रहा है कि नहीं, पटना में ये प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल है। तो मैन्युफैक्चरर कुछ और परसेप्शन लेके चल रहा है और जो इंटरमीडिएट है उसका परसेप्शन और थिंकिंग कुछ और है, उस पर्टिकुलर मार्केट को लेकर, कस्टमर टाइप को लेकर के, प्राइस को लेकर के हो सकता है। तो जब परसेप्शन, दोनों की सोच वैरी करे। ठीक है, चलिए। चैनल असिस्टेंट हो गया, जैसे अगर चैनल मैनेजर या कोई ऊपर का जो होता है वो चाहे किसी भी सामान को मॉडिफाई करना और इंटरमीडिएट है उसी से खुश है। हाँ, मतलब हाँ, मॉडिफिकेशन अगर कोई भी चैनल लीडर है और अगर उसको चेंज करना है, तरीका सेल करने का तरीका चेंज करना है, जैसे आजकल तुम लोगों को पता होगा कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं लगभग हर एक कोई ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रहे हैं, मतलब ई-कॉमर्स में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, जो आपके रिटेल स्टोर तक, फिजिकल स्टोर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, उनको ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं लग रही है। तो रेसिस्टेंस इज ऑलवेज देयर व्हेन देयर इज एनी मॉडिफिकेशन व्हिच इज मेड बाय द चैनल लीडर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट। हाँ, इसका मतलब होता है कि जब आप एक सेल्स टेरिटरी है आपका और एक स्मॉल सेल्स टेरिटरी में नैरो कस्टमर बेस है, नैरो कस्टमर बेस है यानी जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है वो भी कम है और आपका सेल्स टेरिटरी भी कम है, स्मॉल है, और यहाँ पर आपने मैन्युफैक्चरर ने मल्टीपल रिटेलर और होलसेलर को अलाउ कर दिया प्रोडक्ट को सप्लाई करने का। अब आप बताओ कि एक छोटे से मार्केट में अगर 20 एक जैसा रिटेलर अवेलेबल रहेगा तो कस्टमर के पास 20 में से कहीं से भी प्रोडक्ट को परचेज करने का ऑप्शन है।
तो पर रिटेलर के हिसाब से जो कस्टमर्स है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यानी अगर 20 कस्टमर एक दिन में वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक टेलीविजन का ले लेते हैं, एक दिन में 20 कस्टमर अगर एक टेलीविजन खरीद रहे हैं कंपनी का, तो वो 20 कस्टमर के पास ऑप्शन है उस 20 स्टोर में से कहीं से भी प्रोडक्ट खरीदने का। तो प्रोबेबिलिटी तो ये है कि हर एक कहीं से भी वो खरीद सकता है, लेकिन कहां से उसका कोई श्योरिटी नहीं है। मान लो कि 20 में से 15 कस्टमर ने एक रिटेलर से खरीद लिया और 5 अलग अलग रिटेलर से खरीद लिया, तो यहाँ पर 6 रिटेलर्स का तो हो गया काम, लेकिन 14 जो रिटेलर्स बच गए उनका तो कहीं ना कहीं लॉस हो गया। वहीं अगर 1 या 2 रिटेलर होता तो कंपटीशन इंटेंस नहीं होता। तो यहाँ पर ये जब ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है जब मैन्युफैक्चरर मल्टीपल मीडिएटर्स को, इंटरमीडियरीज को प्रोडक्ट सप्लाई करता है, और वो भी नैरो और स्मॉल सेल्स टेरिटरी के लिए, तब ये आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तब ये पॉइंट ये समझ में आया अंकित? चलिए, एनीवन हैव एनी डाउट इस टॉपिक में, इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसिक्वेंसेस क्या होगा, यानी कि क्या क्या चीजें होंगी जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। ठीक है, तो तुम लोगों ने कई बार ये चीज सुना होगा कि जब आप कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, एक मिनट, टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन, एवरी स्टूडेंट, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू गिव अटेंडेंस टू एनीवन। ऑनलाइन क्लास, कैमरा ऑन करके बैठो सारे। व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस, यानी इसका असर क्या होगा। कई बार आपने नोटिस किया है, जैसे आप कभी लेने कुछ भी प्रोडक्ट चाहते हैं, तो जैसे कोक हो गया, कई बार माउंटेन ड्यू, ये सब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर आप खरीदते हैं, या कोई एफएमसीजी में और भी कोई कंपनी देख लो, कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ये प्रोडक्ट काफी दिनों से नहीं आ रहा है, सप्लाई ही नहीं हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना रिटेलर्स कई बार। So this is one of the dissatisfaction which arises among the consumers if they will find a particular type of product is not available in the market. ठीक है, तो जब भी कभी भी किसी इंटरमीडियरीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, या तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में होगा, तो होलसेलर को या तो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करेगा, या तो होलसेलर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आगे जो रिटेलर्स है उनके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, या आगे के मेंबर्स के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। और इसका फाइनल असर क्या होगा कि आपके कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाई होंगे। तो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन विल बी इंक्रीज इफ दे आर नॉट एबल टू फाउंड द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, तो वो एक अलग सिचुएशन है, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। आई एम सेइंग अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट पे डिमांड कम हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है इसीलिए डिमांड कम होगा। वो तो पूरा कस्टमर पे बेस्ड है ना, कि आपका डिमांड कस्टमर के हिसाब से कम और ज्यादा होगा, क्योंकि फाइनल तो उन्हीं को सेल करना है। मैं कॉन्फ्लिक्ट के टर्म में कह रही हूँ कि जब कॉन्फ्लिक्ट होगा और उस प्रोडक्ट का ऑलरेडी मार्केट में बहुत डिमांड है, लेकिन वो प्रोडक्ट अगर आप सप्लाई नहीं करोगे, अब हर एक होलसेलर जो होता है उसके पास एक एरिया डिफाइंड होता है, समझ में आ रही बात? तो एरिया डिफाइंड है, उस एरिया में आपको वो प्रोडक्ट कभी मिलेगा ही नहीं अगर वो पर्टिकुलर सप्लाई बंद किया जाए। या तो उसके लिए कस्टमर में डिससेटिस्फैक्शन होगा ना, कस्टमर खुश तो नहीं होंगे अगर उनको प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। दे हैव टू ट्रैवल टू फार प्लेसेस टू परचेज दैट प्रोडक्ट। ये ना मेडिसिन के साथ भी कई बार होता है, आप लोगों को पता होगा कि कुछ 1-2 कंपनीज की मेडिसिन जो है टाइप खत्म या कम हो जाती है, शॉर्टेज होने की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर इंटेंशनल एक्शन है ये, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंटेंशनली मैन्युफैक्चरर ने या तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, या होलसेलर या अदर इंटरमीडियरीज ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया। लेकिन इन सब का सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? तो कंज्यूमर पे। तो कंज्यूमर आपका डिससेटिस्फाई है। प्रोडक्ट का शॉर्टेज होना, डिमांड का शॉर्टेज होना, सप्लाई का कम होना बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा डिमांड, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन, बट आई एम सेइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्लास में एग्जांपल ले लो, ये 2 बच्चियां हैं, इनके बीच में लड़ाई हो गई और वो थर्ड पर्सन को नोट्स चाहिए होता है। अब ये इससे और ये इसको देती होगी नोट्स, अब इसका और इसका बहस हो गया, तो उस तक वो नोट्स पहुंचेगा क्या? समझ में आ गई बात? तो दिस इज द एग्जांपल ओनली, डोंट टेक इट सीरियसली। ठीक है, चले नेक्स्ट वन इज प्राइस वॉर्स। प्राइस वॉर्स, प्राइस वॉर्स, ठीक है, प्राइस वॉर्स। तो अब जब भी कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होगा मान लीजिए, तो प्राइस वॉर का मतलब क्या होता है? जब प्राइस
में काफी ज्यादा डिफरेंस आने लगे मार्केट में किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर के, ड्यू टू चैनल कॉन्फ्लिक्ट। जब चैनल में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो पार्टनर्स होंगे compete with each other on the grounds of price। समझ में आई बात? एथिक्स ही खत्म हो जाएगा प्राइस को लेकर के। जैसे एक सिचुएशन होता है, मान लीजिए कि 4 रिटेलर के बीच में लड़ाई हो गई, एक एरिया के 4 रिटेलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब वो चारों क्या करेंगे, आपस में compete करेंगे इस सिचुएशन को लेकर, प्राइस को लेकर। कोई कम कर देगा प्राइस, कोई डिस्काउंट लगा देगा प्राइस में, तो कस्टमर्स क्या होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होंगे, चले जाएंगे दूसरे रिटेलर के पास, वो उससे बेटर डिस्काउंट देगा तो वो उसके पास चले जाएंगे। सो दिस इज द प्राइस वॉर और द कंपटीशन फॉर द प्राइस इज गोइंग टू बी हैपन व्हेन देयर इज अ चैनल कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आई बात? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट योर ओन प्रॉफिट, and for earning profit you can use any kind of sales promotion, you can give discount and offers on purchasing of that particular product, right? So the price war can be happen, every retailers will start competing with each other। समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन इज कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। तो समझ में आ गया था कस्टमर डिससेटिस्फाई क्यों रहेगा। नेक्स्ट है सेल्स डेटोरिएशन। सेल्स डेटोरिएशन, सेल्स डेटोरिएशन, सेल्स डेटोरिएशन, सेल्स डेटोरिएशन। अब देखो क्या होगा इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट। देखो मान लीजिए कि होलसेलर, मान लीजिए रिटेलर और आपके मैन्युफैक्चरर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। अगर ये 1 लेवल चैनल है तो रिटेलर और मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं ना, क्योंकि सिर्फ एक ही इंटरमीडिएरी रहेगा। और रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो रिटेलर क्या करेगा ना, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं करेगा। he is not going to sell your product। it might be possible कि या तो वो आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने से मना कर दे, या तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको सेल भी करने की कोशिश ज्यादा इफेक्टिवली ना करे, है ना। तो लास्टली क्या होगा, सेल्स डेटोरिएट होगा। आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो आप कर रहे हो प्रोडक्ट का, उसका सेल्स कम होता जाएगा, खराब होता जाएगा, डाउनवर्ड होता जाएगा, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका इफेक्ट एडवर्सली और वर्सली पड़ता है आपकी सेल्स पर, आपके प्रोडक्ट के सेल्स पर पड़ेगा। ड्यू टू डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स, हो सकता है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या फिर जो डीलरशिप जो आपने एग्रीमेंट किया वो भी खत्म हो जाए, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर भी कम हो सकते हैं आपके, राइट। और जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है अगर उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में चल रहा है तो आपके प्रोडक्ट को वो प्रमोट ना करे और सेल करने से, परचेज करने से मना कर दे, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स का कम हो जाना, ऐसे में क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा क्या, नहीं होगा। सो आप बहुत सारी एरियाज में प्रोडक्ट सेल कर ही नहीं पाएंगे। अरे बस समझ में, in so many areas you are not able to sell the product because the distributor of that area has already terminated the agreement with you। So फिर to finding a new distributor, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करना, एक नया होलसेलर को ढूंढना, it is not an easy task। सही बात है, सही बात है ना। So it is going to take time। अगर 1 महीने बाद भी आप सप्लाई करना शुरू करते हो तो 1 महीने का लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो दिस कैन बी हैपन, सेल्स डिटोरिएट होगा, सेल्स कम हो जाएगा, इसलिए सब इंपैक्ट है, ये सब असर होगा आपकी कॉन्फ्लिक्ट का। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जिट। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बाहर चले जाएंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो आपके एग्रीमेंट को क्या करेंगे, एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो एग्जिट हो सकते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चरर इट इज एसेंशियल टू रिटेन द डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्ट सेल। अगर मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है और ज्यादा सेल करना चाहता है तो ऐसे सिचुएशन में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको क्या करना चाहिए, उनको रिटेन करना चाहिए, मैन्युफैक्चरर को रिटेन करना चाहिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि उनका सेल बना रहे, है ना। और ऐसे केस में क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन इन दैट सिचुएशन कि अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर बाहर चलते जाएंगे तो आपका सेल्स पर बुरा असर पड़ेगा। तो जो पहले वाला पॉइंट था वही लगभग सेम पॉइंट है। नेक्स्ट है पुअर पब्लिक रिलेशन। अब इसका ना इम्पैक्ट आपकी कंपनी पे पड़ना शुरू होगा। जब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम होने लगेगी
तो पब्लिक जो है वो दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करेगा या नहीं, ये बताओ। दूसरे प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर सिप्ला का पैरासिटामोल है जो मार्केट में मिलना बंद हो जाए, तो आप पैरासिटामोल का जो दूसरा टाइप है या कंपोनेंट, सेम कंपोनेंट का जो दूसरा कंपनी पैरासिटामोल प्रोवाइड कर, आप वो खरीदोगे कि नहीं? खरीदना शुरू कर दोगे ना। अब एक ही प्रोडक्ट पे तो बेस्ड रहोगे नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है और नीड है और कस्टमर के पास जो ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का मार्केट में, तो वो उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेगा। तो पहली चीज तो आपका सेल्स लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट हो जाएगा अगर आपके कस्टमर्स जो है वो मूव करके किसी और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ, और आपका जो रिलेशन है, आपका जो ब्रांड इमेज है वो पब्लिक के सामने डेटोरिएट होगा, स्पॉइल होगा, खराब होगा, क्योंकि आपकी थिंकिंग ये होगी कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट की मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं। आ रही बात समझ में? तो एक पब्लिक रिलेशन जो है, आपके ब्रांड का जो एक पब्लिक रिलेशन जो है वो क्या होगा? खराब होगा, डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा। क्लियर होगी बात? सो दीज आर द consequences ऑफ द channel conflict, and what are the reasons of channel conflict is clear, and what are the types of channel conflict. ठीक है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना, because I am going to take the test from this chapter distribution, and one more thing I just want to tell you, pricing and distribution से मैं टेस्ट लूंगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक दो टॉपिक है, उसके बाद प्रमोशन शुरू करेंगे और प्रेजेंटेशन भी तुम लोगों को देना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं दूंगी। मैम जो आप कॉन्सिक्वेंसेस में सेकंड पॉइंट बताई थी वो रिपीट कर दीजिए ना। कौन सा पॉइंट है बताओ? मैम कुछ प्राइस करके था, समझ नहीं प्राइस आया। वॉर, प्राइस वॉर, प्राइस यस वॉर। तो प्राइस वॉर का मतलब ये है कि जब आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, मान लो आपके सेम लेवल चैनल्स में जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हर एक जो एथिक्स खत्म हो जाएगा कि आप भी 500 में जो प्रोडक्ट सेल करो, बाकी रिटेलर भी जो 500 में सेल कर रहा है, दे विल स्टार्ट कंपीटिंग विद ईच अदर। वो अब कंपटीशन में आ जाएंगे और वो compete करने लगेंगे और डिस्काउंट्स, ऑफर्स या कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। So competition, unhealthy competition is going to be arise between the same level channels or between the retailers or the wholesalers. So that is known as price war. Clear हो गया? यस मैम।